Hello and welcome back. Today's lecture will discuss component method. We'll start our discussion with what is component of a vector. And from last class, you know that cosine law, or it's a bit difficult to use cosine law if large number of vectors are involved. So let us start with what is component of a vector. Cosine law का क्या limitation था? So, today we'll discuss so again, purpose is to add and subtract vectors, any number of vectors for that matter. So first thing is, what is component of a vector? Question लिख लो. What is component of a vector? What is component of a vector? It's a geometrical construction. It's a geometrical construction. ठीक है? It's a geometrical construction. So, first of all, draw x-axis and y-axis. सब कोई draw किया हो ना मैथ्स में? खुद draw करो तो x-axis and y-axis. X-axis and y-axis. हो गया? So you have drawn like this, or diagram 1 or diagram 2. Which one you have drawn? 1 or 2? 2. ठीक है? This you say is x-axis and this one is y-axis. X-axis and y-axis, isn't it? And the moment you draw this, then this becomes which quadrant? First, this is third and fourth. ये fixed है math में? First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. है ना? First means दोनों positive है. Second, x is negative, y positive, third both negative. Now, today onwards, at least in physics, you will never draw this diagram. X-axis and y-axis will mean something very different. है ना? तो आगे लिखो. In physics, any direction can be taken as positive x-axis. Any direction can be taken as positive x-axis. Clear? ये बहुत significant है. Now, suppose this horizontal you are taking as x-axis. Now, if you draw like this, then which direction is positive x is not explained here. And in this, you have taken this as well as this to be positive. So in physics, what we do is we take help of only one arrow. This arrow means what? This is direction of positive x. You can draw like this also. It means what? This is positive x. मान लो तुम किसी बुक शॉप में गए, है ना, फिजिक्स की कोई किताब उलट के देखे और उसमें ऐसा दिया हुआ था एक्स एक्सिस, क्या करोगे बताओ? लौटा दोगे ना कि मिसप्रिंट है. एक्स एक्सिस ऐसा देखे थे कभी मैथ्स में? नहीं देखे हो. लेकिन अभी क्या नोट किए तुम? फिजिक्स में क्या कर सकते हैं? Any direction can be taken as
So we take help of how many arrows? 1. Double arrow is not correct. And then y of course is perpendicular to x. ये fixed है. y और x के बीच एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. So this is your coordinate system. और यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, ये y हो जाएगा. ऐसा ड्रॉ कर लो. तो क्या चेंज करना है तुमको डायग्राम में? फॉर वन एक्सिस 2 एरोज और 1 एरो? 1 एरो. डन. इनफैक्ट देखो, ये समझ में आ रहा है कुछ? ये कौन सा एक्सिस है? पॉजिटिव एक्स. और ये क्या है? बता सकते हो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? दिस वन. फर्स्ट. क्यों फर्स्ट? बोथ पॉजिटिव. व्हाट अबाउट दिस वन? ठीक से. हाँ. थर्ड. सेकेंड का क्या मतलब होता है? Which one positive? Which one positive? X negative and Y. So this is second or not? What about this one? Third. Y. And what about this? Fourth. क्या डिफरेंस समझ में आया बताओ मैथ्स में और फिजिक्स में? मैथ्स में हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस, वर्टिकल इज, ये फिजिक्स में जरूरी है ना? क्यों ऐसा है ये हम लोग आगे कभी डिस्कस करेंगे, तुम खुद उसको समझ पाओगे कि ऐसा क्यों है फिजिक्स में. तो फ्रॉम डे वन इटसेल्फ अब तक तुम ये डायग्राम ड्रॉ करते आए हो और तुम्हारे लिए क्वाड्रेंट क्या था? चेंज कर सकता था या फिक्स था? यहाँ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना? तो इनिशियली हम लोग ऐसा ही कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट लेटर ऑन तुम ऐसा बहुत सारा केसेस यू विल कम अक्रॉस जहाँ पे जैसा तुम एक्स वाई एक्सिस जानते हो उससे बहुत डिफरेंट है. एंड इसी वेक्टर वाले कोर्स में ही हम लोग एक तीसरा एक्सिस भी ऐड करेंगे नोन एज जेड एक्सिस. ठीक है. नाउ क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? व्हाट इज कंपोनेंट? तुम आंसर क्या लिखे? इट्स अ. तो हाउ, क्या ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है? तो अब एक बार फिर से उसको चेक करते हैं. लिखो, component is a geometrical construction. Component is a geometrical construction. तो सबसे पहले you need a coordinate system. ये ड्रॉ कर लो, x axis, y axis. तो कहाँ से स्टार्ट करना है तुमको? x axis and y axis. Now you know तुम x और y axis कैसे शो करोगे? ठीक है. First step, redraw vector or given vector from origin. Redraw given vector from origin. तो suppose यहाँ कहीं ड्रॉ कर देते हैं. ये एक वेक्टर गिवन था A. We have to find its component. समझ गए? कोई वेक्टर गिवन है तो पहले स्टेप में क्या करना है? रीड्रॉ इट फ्रॉम वेयर? ओरिजिन. स्टेप 2, पहले स्टेप सब लिख लेते हैं फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे. स्टेप 2, ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर, ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर ऑन x and y axis. Clear? ज्योमेट्री में ये काम किया हो ना, किसी पॉइंट से यू कैन ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन सम लाइन और नॉट. तो इसी दो स्टेप को इंप्लीमेंट करो. x एक्सिस, y एक्सिस, नीचे ड्रॉ कर लो डायग्राम. वेक्टर को कहां से रीड्रॉ करना है? ओरिजिन. ये वेक्टर a हो गया. और नेक्स्ट क्या करना है? ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम वेयर? हेड ऑफ वेक्टर ऑन व्हाट? सो डू दैट. डॉटेड लाइन से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस. डन. और इसको लेबल कर लेते हैं. ये O है,
दिस पॉइंट इज P, दिस इज M, दिस इज N. ऐसा लेबल कर दो, OPMN. ओके. This OM मार्क कर दो एंड दिस ON. OM and ON. अब अलग से लिखो OM. What is OM? Now most simply, पहले ड्रॉ कर लो, सबको ड्रॉ कर लो. यहां तक तो क्लियर है ना? इट्स अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्ट. क्या 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 करना पड़ा हम लोगों को? रीड्रॉ वेक्टर फ्रॉम वेयर, और उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है फ्रॉम वेयर, हेड ऑन व्हाट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. Now if I ask you what is OM, most obvious answer that comes to mind is distance between point O and point M. तो ऐसा लिख दो यहाँ, distance between point O and point M. Distance between O, point O and point M. Done? Now, we are dealing with vector, है ना? थोड़ा अब इसको फाइन ट्यून करते हैं. एक चीज देखो, तुम भी वो काम करो. O की जगह कैन यू यूज दिस टर्म ओरिजिन? इंस्टेड ऑफ O कैन वी यूज दिस वर्ड ओरिजिन? सो राइट दैट, ओरिजिन कर लेते हैं. और इंस्टेड ऑफ M कैन वी यूज फुट ऑफ परपेंडिकुलर? ऐसा टर्म यूज करते थे ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. M is foot of perpendicular or not? So what is OM then? OM अब क्या हो गया? Distance between what and what? Origin and foot of perpendicular. But हम लोग ये डिस्कस किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं? We are dealing with vector or not? We are dealing with vector. और अगर तुम ऐसा लिखते हो तो क्या हो रहा है? Origin मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम पे फोकस हो रहा है, वेक्टर तो कहीं इन्वॉल्व है नहीं. वेक्टर वर्ड कहीं आया? थोड़ा और चेंज करके देखते हैं. इस ओरिजिन की जगह कुछ और लिख सकते हैं. देखो, तो कैन वी से O is tail of vector? So right, origin की जगह लिख दो tail of vector. है या नहीं? Tail of vector. और M, foot of, this remains same, foot of perpendicular, but that perpendicular is dropped from where? Head of vector. Foot of perpendicular, comma, dropped from head of vector, drop from head of vector. तो vector word आ रहा है ना? So let us conclude. What is OM? अब नीचे लिखो, सबको OM क्या लिख सकते हैं? Distance between what and what? Write that. OM is distance between tail of vector, distance between tail of vector and foot of perpendicular, distance between tail of vector and foot of perpendicular, drop from head of vector, drop from head of vector. कुछ और इसमें ऐड करते हैं, थोड़ा और मीनिंगफुल हो जाएगा, देखना. यहां तक तो क्लियर हो गया सबको? कोई इश्यू नहीं है? ये लिखें, इसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं. along x axis, along what? along x axis, along x axis. है या नहीं along x axis? So what is OM? Distance between tail of vector, foot of perpendicular, drop from head along is known as, उसी में आगे कर दो, is known as x component of vector, is known as x component of vector, x dash component. ऐसा लिखते हैं, x component of vector. तो you know what is component? अब खुद से चेक करो, फिर तुम उसको कंक्लूड करना. हम कुछ नहीं कर रहे हैं. ON कुछ समझ में आ रहा है? किससे इसके बीच का डिस्टेंस है बताओ? टेल ऑफ वेक्टर, डिफरेंट वेक्टर या सेम वेक्टर? एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ड्रॉप फ्रॉम वेयर?
तो जो अभी लिखे हो वही है, बदल क्या रहा है केवल, अलॉन्ग व्हाट, तो ये कौन सा कंपोनेंट है, खुद लिख लो ओ एन, सेम अपने वर्ड में लिख लो, ओ एन इज डिस्टेंस बिटवीन ऊपर जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही लिखना है ना, केवल क्या चेंज हो जाएगा, x की जगह y along y axis is known as y component. Done? So this OM is x component and this ON is y component, है ना। एंड फिर से नीचे एक ये डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कर लो, सेम डायग्राम, छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर दो। Now we use mathematical symbol like this, a subscript x. Why this a? Because कौन सा वेक्टर है a, सबस्क्रिप्ट x क्यों, किस एक्सिस के लॉन्ग है x, और यहाँ क्या होगा a सबस्क्रिप्ट y. So this is notation for component of a vector, ax and ay, a subscript x and a subscript y. तो क्या करना पड़ा बताओ, component is a geometrical construction, what you will do, redraw vector from where, origin, and then do what, draw perpendicular on axis, x axis and, और जैसे ही तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे उसके बाद तो दिख रहा होगा तुमको कंपोनेंट x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, फिर तो कोई इश्यू नहीं है।